Is there any specific student who has inspired you to include all these approaches in your book? Shruti Sharma, 2021 IAS AIR rank first. Hello everyone, myself Angel Mridul. I'm doing graduation from Hindu College, Delhi University. Today I have the honor to present someone who is not just an author, but a dedicated scholar, a passionate teacher, and a guiding light for thousands of aspirants, Dr. Kumar Nalin. He has done his higher education from Delhi University, and his work represents the depth of knowledge and the understanding of the exam needs. He is a distinguished professor of history and with more than 2 decades of teaching and research experience. He has mentored students preparing for civil services, especially the IAS and the PCS examination. His recent work, Vishwa Ka Itihas, is a comprehensive and a strategic guide for all the UPSC aspirants. So now let's welcome Dr. Kumar Nalin. Thanks, Angelina, for inviting me. Absolute pleasure, sir. How are you? I'm fine. So, before we move deeper into this purpose of your book and your work, let's just introduce that what are the important features of this book? Well, actually, I have created this book and we have given so many important features like this book is based on multi-dimensional approach, scientific and analytical approach. And apart from these features, I have also included standard and scientific terminologies, included maps and diagrams. And I have also included PYQs, that is previous year's questions, and model answers. So these are the important features of my new book on world history. So, following on what you have just mentioned, so you talked about the multidimensional approach. So, could you tell me what it actually means and any example of this approach you have? Yes. Multidimensional approach means कि I have included every aspect of a particular topic. As for example, French Revolution. I have discussed the approaches of this topic, introduction, background, different phases of the topic, and also I have given the consequences of the revolution compared with the Russian Revolution, given the model answers, and I have linked this topic with other contemporary issues. As for example, in the French Revolution, we have compared the Russian Revolution. And also French Revolution with the rise of Napoleon Bonaparte. So I have explained French Revolution, I have explained just like Napoleon Bonaparte was the finest product of French Revolution. I have also given some aspects of French Revolution that is resultant in the worldwide scenario and every aspect of the society, every aspect of the world taken inspired from this revolution. And another example, I have linked with mercantilism and American Revolution. Like recently a question asked, American Revolution was the economic revolt against mercantilism. So you can easily understand the relationship between American Revolution and mercantilism. Without understanding the mercantilism, you cannot explain the different dimensions of American Revolution. I have also give you some examples of Nazism, fascism, and they given the basis of the Second World War.
So all these phenomena are interconnected. That is the multidimensional approach. So if you go through this book, your insight will develop and you will in the position to answer all the questions which is asked in civil services and in future which will ask in the civil services examination. Absolutely amazing, sir. So here I have a question that does this book includes the diagrams, flowcharts, and ये सब चीजें इन सारी की अंडरस्टैंडिंग में कैसे इसको इजी करेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। दरअसल मैंने अपनी पुस्तक में बड़ी संख्या में मैप्स का प्रयोग किया है, डायग्राम्स का प्रयोग किया है, फ्लो चार्ट के प्रयोग किया है, ताकि बच्चों को जो एस्पिरेंट्स है सिविल सर्विसेज के, वे बहुत आसानी से इन टॉपिक्स को समझ सके, इस चैप्टर को समझ सके और सिविल सेवा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को तैयार कर सके। क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, तो जब तक आप मैप्स नहीं देखेंगे, लोकेशंस नहीं देखेंगे, तब तक हिस्टोरिकल फिनोमेना को समझना मुश्किल है। तो इसलिए हमने बड़ी संख्या में मैप्स इसलिए डाले हैं ताकि आप किसी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। Okay, sir. Great. Moving on to the next question. So, while writing the Vishwa ka Itihas, have you referred to the previous year question papers of the UPSC Yes. examination? हमने इस किताब में प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, शायद आपको जानकारी होगी कि 2013 ऑनवर्ड्स जो नए पाठ्यक्रम आए, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को जीएस में भी इंक्लूड कर लिया गया, ऑप्शनल में तो पहले से ही था इसका पार्ट, जो जीएस में इंक्लूड किया गया, उसमें 2000 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी तक के, आज की तारीख तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है और उस प्रश्न को दिया गया है। और किताब की रचना इस प्रकार से की गई है कि अगर कोई नया छात्र भी, कोई नया मतलब एस्पिरेंट्स भी, अभ्यर्थी भी अगर इस पुस्तक से जाता है तो उन सारे प्रश्नों का वो जवाब दे सकता है। और केवल ऑप्शनल, केवल जीएस ही नहीं, बल्कि ऑप्शनल के सारे बच्चे भी इस पुस्तक से लाभान्वित हो सकते हैं। Okay, sir. Great. So, continuing to this, what kind of model answers or writing practice does this book offers to the students? ओके, अपने लंबे टीचिंग कैरियर में जो मोर देन 2 डिकेड्स का है, मैंने देखा है कि बच्चों को सबसे अधिक समस्या आती है मॉडल आंसर लिखने में, क्योंकि ये बताना आसान है कि आंसर का फॉर्मेट क्या होगा, आंसर को कैसे लिखा जाए, लेकिन जब एक्चुअल में जब आप लिखने जाते हैं तो आपको समस्याएं आती है। आप बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चन, हाउ टू कंक्लूड द क्वेश्चन, हाउ टू कंक्लूड द आंसर। तो ये सारे स्टेजेस जो है कि कैसे आंसर को आरंभ करें, कैसे आंसर को आगे ले जाएं, कैसे आंसर को समाप्त करें, इसके लिए मैंने मॉडल आंसर दिए हैं ताकि बच्चों को, कुछ क्वेश्चनों के मॉडल आंसर दिया, ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न के आंसर है, कुछ प्रश्नों के, चुनिंदा प्रश्न के मॉडल आंसर दिए ताकि बच्चों को यह पता चल सके कि हाउ टू राइट द मॉडल आंसर। और इसमें हमारे जो छात्र जो सिविल सेवा में क्वालिफाई कर चुके हैं, जो उच्च रैंक लाए हैं, उन सारे बच्चों के जो आंसर फॉर्मेट थे, जो मेरे मार्गदर्शन में बच्चों ने बनाए थे, उन सारे आंसरों का एक तरह से इसमें निचोड़ दिया गया है जो विश्व इतिहास से संबंधित है। I'm sure, sir, it would be a great help to all the aspirants. Further, I have a question that this Vishwa ka Itihas meant specifically for the UPSC optional subject or can be used in the general studies preparation or both? सिविल सर्विसेज के जो पाठ्यक्रम है उसमें ऑप्शनल के जितने टॉपिक्स हैं, आई हैव इंक्लूडेड ऑल द टॉपिक्स इन दिस बुक। यू जस्ट से इन दिस बुक ऑप्शनल के सारे टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने विशेष रूप से यह ध्यान रखा है
कि जीएस के जितने टॉपिक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो। ऑप्शनल फ्रॉम रेनेसा टू ग्लोबलाइजेशन, पुनर्जागरण से वैश्वीकरण तक का पाठ्यक्रम है। लेकिन जो जीएस का पाठ्यक्रम है वो फ्रॉम 18th सेंचुरी टू द एंड ऑफ 20th सेंचुरी तक है, 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक का। तो जब ये टॉपिक आप दोनों को देखेंगे तो दोनों में कोई कंट्राडिक्शंस नहीं है, दोनों समानांतर चल रहे हैं। और किताब को, इस बुक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें ऑप्शनल के बच्चे और जो जीएस के बच्चे हैं, सामान्य अध्ययन के बच्चे जिनके पाठ्यक्रम में विश्व इतिहास है, इनको समाहित किया गया है। और इस विशेष बात ये कि जो जीएस में विश्व इतिहास को शामिल किया गया, उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि मॉडर्न इंडिया में जब आप पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया का जो पाठ्यक्रम है वो भी 18th से 20th सेंचुरी जाते हैं। तो आधुनिक भारत को तभी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है जब आधुनिक विश्व को आप समझ सके। तो आधुनिक विश्व के जितने फेनोमेना हैं वही फेनोमेना डायरेक्टली लिंक होता है मॉडर्न इंडिया से। तो अगर मेरी रणनीति अगर आप माने तो आधुनिक भारत पढ़ने के पहले अगर आप आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ ले तो आप अधिक बेहतर स्थिति में रहेंगे। और जितने भी फेनोमेना हैं जैसे कैपिटलिज्म, कॉलोनलिज्म, इंपीरियलिज्म, ये सारे टॉपिक्स आपको जो मॉडर्न इंडिया के हैं वो वर्ल्ड फेनोमेना से आपको आ जाएंगे। तो आप बेहतर पोजीशन में होंगे उसको करने में। Okay, sir. Great. Further, could you also mention any of the reference book which you have used in the creation of this book? या दरअसल पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जिसने हिस्ट्री को क्रिएट किया है, जिसने अपने एक आप कह सकते हैं कि अपने इनसाइट से या फिर नए डायमेंशन से किताब को लिखा, उन सारे किताबों को के रेफरेंस में इस बुक की संरचना की गई है। इसमें हमने डेविड थॉमसन की किताब, रूडे, लेफेब्रे, डेविड थॉमसन ने यूरोप सिंस नेपोलियन लिखा था, रूडे लेफेब्रे ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर लिखा, इमैनुअल सू, सेनो, जॉन किंग फेयरबैंक जो अमेरिकन हिस्टोरियन है उन्होंने चाइनीज हिस्ट्री पर लिखा है। इसके अलावा हॉब्सबॉम जो आधुनिक मॉडर्न राइटर हैं, अमेरिका के हैं, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ये जितने भी आप लेटेस्ट राइटर हैं, इन सारे राइटर्स की जो राइटिंग्स है उसमें जो डायरेक्शन दिया गया है, जो कंक्लूजन है, उन सबको अपनी किताब में इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया है ताकि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वे अंग्रेजी माध्यम में जो उपलब्ध सामग्री है उनसे वो रूबरू हो सके, उनको समझ सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़े। क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिविल सेवा में और उसमें जो हिंदी माध्यम में जो पुस्तकें उपलब्ध है उससे आप उसके उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाते। और ये एक शिकायत रहती है हिंदी माध्यम के छात्रों को कि उनके मार्क्स कम आते हैं क्योंकि उसमें इनोवेटिव आइडियाज नहीं होते, एक परंपरागत चीजें उसमें चली जाती है और वे एनालिसिस की जगह वो डिटेल्स में चले जाते हैं, उसके ऐसे टाइप आंसर लिखने लगते हैं। तो इससे आपको बचने की जरूरत है, आपको एनालिटिकल अप्रोच अपनाने की जरूरत है। Okay, okay, sir. So, is there any specific student who has inspired you to include all these approaches in your book? Yeah. श्रुति शर्मा, 2021 IAS AIR रैंक फर्स्ट। ये जितने भी चीजें हैं इन सबको मैंने इंप्लीमेंट किया। जो मेरी छात्रा है इनको मैंने इन सारी चीजों के बारे में बताया। और जब उसने इतिहास पेपर से दिया, जो आमतौर पर माना जाता है कि इतिहास में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते, इस मिथक को झुटलाने के लिए हमने उसे स्पेसिफिक तरीके से तैयार किया कि कैसे आंसर को डिजाइन किया जाए, हाउ टू राइट ए बेटर आंसर और बेस्ट आंसर।
तो हमने इंट्रोडक्शन पे, कंक्लूजन पे, मेन बॉडी पे, डायग्राम चार्ट्स पे, ऑल्सो गिवन द स्टैटिकल डेटा, इन सारे चीजों को हमने उस पर इंप्लीमेंट किया। परिणाम सामने, ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 विथ हिस्ट्री ऑप्शनल। Yes, sir. Absolutely amazing. Okay, so इधर मेरा एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि is there any specific reason you have written this book in Hindi only? या हिंदी में इसलिए लिखा कि इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत सारे राइटर्स ने किताब लिखी है, दे क्रिएटेड सो मेनी बुक्स। तो इंग्लिश माध्यम के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। इंडियन हिस्ट्री के लिए भी बहुत सारे इंडियन राइटर्स ने अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, लेकिन हिंदी में किसी भी इंडियन राइटर्स ने बहुत अच्छी किताबें प्रस्तुत नहीं की है। और जो किताबें हैं मार्केट में वो सिविल सेवा के अनुरूप नहीं है। तो इसलिए हमने विशेष रूप से इस पुस्तक की रचना की है ताकि सिविल सेवा के बच्चे हिंदी माध्यम में भी वही सामग्री प्रस्तुत कर सके जो अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है। और जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, ऑल ओवर लगभग नॉर्थ इंडिया के सारे राज्य और बड़ी संख्या में जो बच्चे दे रहे हैं, जो बहुत ही मेहनती हैं, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है और उनमें इतनी क्षमता भी है, एफिशिएंसी भी है, लेकिन उचित सामग्री के अभाव में वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते। एक तो संसाधन की कमी है, दूसरा सामग्री की कमी है। तो संसाधन और सामग्री की कमी को देखते हुए जो बच्चे बहुत अच्छे संस्थानों में नहीं जा पाते, बहुत अच्छे किताबें नहीं पढ़ पाते, उनके लिए, जो अंग्रेजी माध्यम की किताबें नहीं पढ़ सकते, उनके लिए हिंदी माध्यम ये किताबें लिखी गई है जो एस चांद एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित की गई है, जो भारत के सबसे बड़े प्रकाशन समूहों में से एक है। टेक्स्ट बुक के मामले में एस चांद एंड कंपनी की एक बहुत ही अधिक प्रामाणिकता रही है, इसलिए हमने एस चांद एंड कंपनी से इस पुस्तक को प्रस्तुत किया। Since we all know that sir has already written so many books before, so I want you to tell me a brief about all those books. Yeah. Well, I have written so many books on history. First of all, I have written a book on UGC NET examination with history optional. सबसे पहले तो हमने UGC NET के लिए किताब लिखी जो अरिहंत प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। भारत के एक सबसे बड़े प्रकाशन समूहों में से एक है, अरिहंत से प्रकाशित हुई। इसके बाद किताब लिखने का सिलसिला आरंभ हो गया, फिर बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें सिविल सेवा के बच्चों के लिए मैंने माइग्रा हिल पब्लिकेशन से 2 किताबें लिखी, एक विश्व इतिहास के लिए और एक इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखा, इंडियन हिस्ट्री भी लिखा। इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ये तीनों सेक्शन को हमने कवर किया। बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। और एक किताब विश्व इतिहास के लिए लिखा। ये सब किताबें लिखी। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो हमने इस किताब से पहले इसकी रचना की थी। Okay, sir. So how is this book different from your previous books? राइट। इस किताब की रचना चूंकि अभी अभी हुई है, इसलिए इस किताब में जो प्रीवियस जो बुक्स थे उसमें जो चीजें हमें लगता है, जो पाठकों के सुझाव आए, हमारा मेल आईडी इस बुक में दिया हुआ है, उस मेल आईडी पर बच्चों के सुझाव आए, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए इस बुक को डिजाइन किया गया ताकि और अधिक ये उपयोगी हो सके। हमने कुछ चैप्टर्स को बढ़ाया है, पुरानी जो विश्व इतिहास के जिसमें कुछ चैप्टर्स को बढ़ाया, कुछ जो चैप्टर्स है उसको रीराइट किया, कुछ मैप्स की संख्या बढ़ाया, कुछ हमने उसमें स्टैटिकल डेटा दिए और साथ ही साथ कुछ फ्लो चार्ट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, कंटेंट को भी रीराइट किया। Okay, sir. So I was going through this book, and in the very starting, I have seen that Professor Pushpesh Pant sir has also given you the blessings. So what about that? प्रोफेसर पुष्पेश पंत सर इंडिया के एक रिनाउंड स्कॉलर हैं, जेएनयू से सेवानिवृत्त प्राध्यापक है, पद्मश्री अवार्ड विनर है और जो यूथ है, जो नए जनरेशन के लोग हैं, उनको मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। तो जब इस पुस्तक की प्रति, इसका जो ड्राफ्ट है,
मैंने मेल किया था पुष्प स्पेंसर को, तो उससे वो बहुत प्रभावित हुए थे और इस किताब के जिस प्रकार से मैंने डिजाइन किया था वो उनको बहुत पसंद आया, कंटेंट पसंद आई और तब उन्होंने स्पेशल रिमार्क्स के साथ अपनी शुभकामनाएं हमें प्रेषित की, जो पुस्तक में हमने प्रकाशित किया है। एक प्रकार से अपने गुरु के प्रति मेरा यह सम्मान है। That's absolutely so nice of you. So, is there any specific reason that you have used the S. Chand publication? या एस चांद पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक के अंतर्गत भारत का सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है और बचपन से, मेरे चाइल्डहुड से मैं इस प्रकाशन के किताबों का अध्ययन स्वयं करता रहा हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रकाशन समूह ने मुझे एक लेखक के रूप में अपने प्रकाशन से मेरी पुस्तक प्रकाशित की है। इस प्रकाशन से मेरी पहली पुस्तक है और ये चूंकि बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, आप कह सकते हैं कि लीडिंग पब्लिशिंग हाउस है, तो इसलिए मैंने विशेष रूप से इस प्रकाशन समूह का चयन किया कि एस चांद से मैं अपनी किताब दूं, क्योंकि इसका जो रिच है वो पूरे भारत में सबसे अधिक लोगों के पास है, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये किताब पहुंचे। जो पूर्ववर्ती कुछ किताबें थी उसके साथ कभी कभी ये दिक्कत आती थी कि समय पर उसका एडिशन या रीप्रिंट नहीं हो पाता था। तो इस प्रकाशन समूह ने हमें आश्वासन दिया है कि जब भी बच्चों के डिमांड आएंगे, उनकी मांग होगी, उसी समय इस किताब को रिप्रिंट किया जाएगा और यदि आवश्यकता हुई तो फिर उसका नेक्स्ट एडिशन निकाल दिया जाएगा। Okay, sir, that's good. Sir, apart from the UPSC preparation, will this book be also useful in the academic preparation for the rest of the students? Yes, to some extent. Actually, this book is especially designed for civil services examination. But apart from that, with some extent, this book is also useful for academic purpose. Sir, will all the history lovers would love to delve into this book? Yes, जिन्होंने अभी तक कभी इतिहास नहीं पढ़ा और जो विश्व इतिहास को जानना चाहते हैं, जिनका एकेडमिक्स और सिविल सेवा से कोई संबंध नहीं है, वे भी इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं। विश्व इतिहास में घटित जो फेनोमेना है, जो परिघटनाएं हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इस किताब से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको प्रस्तुत किया गया है, भाषा बहुत ही सरल है, रोचक है। तो इस किताब से आप निसंदेह वैसे लोग भी जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनको विश्व इतिहास के संदर्भ में एक सामान्य दिलचस्पी है। Amazing, sir. Okay. Sir, could you guide us through all the chapters which you have included in this book and how they are like prepared? यस, इस किताब में कुल मिलाकर 38 चैप्टर्स है, जिसमें से आरंभ के जो कुछ चैप्टर्स है वो विश्व इतिहास के आरंभिक पूरी झलक, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री है, जिसमें रेनेसा, रिफॉर्मेशन, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, मर्केंटलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनलिज्म, ये सारे चैप्टर्स है जो आपको विश्व इतिहास में प्रवेश कराएंगे। और उसके पश्चात फिर 18th और 19th सेंचुरी से रिलेटेड चैप्टर्स है। सबसे जो ज्यादा चैप्टर्स है, more than 50%, these chapters were related to contemporary history, especially in the 20th century history. 20वीं शताब्दी से संबंधित सबसे अधिक है। चूंकि सिविल सर्विसेज में सबसे अधिक प्रश्न 20वीं शताब्दी से आते हैं, उसके डायमेंशंस बहुत विस्तृत है, तो इसलिए उन सारे पर फोकस किया गया है। अगर आप विश्व इतिहास की बात करें तो उसमें एशिया का इतिहास भी शामिल है और उस एशियाई इतिहास में हमने इसमें इंक्लूड किया है मिडिल ईस्ट, स्पेशली इजिप्ट एंड इजराइल, वेस्ट एशिया स्पेशली विथ स्पेशल रेफरेंस टू टर्की, साउथ ईस्ट एशिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। इसी प्रकार से जितने भी और भी पार्ट्स हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। विश्व इतिहास का मतलब पहले केवल यूरोप का इतिहास माना जाता था, लेकिन अब विश्व इतिहास में
अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी है, यूरोप तो है ही है, इसके साथ वो एशियन कॉन्टिनेंट भी है, अफ्रीका भी है। तो हमने सभी महादेशों को इसमें इंक्लूड किया है और 38 चैप्टर्स में विश्व इतिहास से संबंधित किसी भी डायमेंशन को और किसी भी रीजन को हमने नजरअंदाज नहीं किया, सबको इसमें समावेशित करने का प्रयास किया है और एक नए प्रकार से इस पुस्तक को डिजाइन किया है जो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को यह काफी उपयोगी प्रतीत होगा। Absolutely, sir. So, before we conclude, I have one last question. Since we all know that you come from a rich family legacy background, so how has that inspired your writing journey? या एक तो मैं जहां से बिलोंग करता हूं वहां एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है। मिथिलांचल और वजिकांचल की समृद्ध परंपरा मेरे साथ जुड़ी रही है और अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मेरे पिता जो एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अत्यधिक योगदान दिया और सोहम श्री सत्यम के नाम से, चूंकि वो प्रशासनिक अधिकारी तो अपने मूल नाम से नहीं लिख सकते थे, इसलिए उन्होंने सोहम श्री सत्यम के नाम से अनेक पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी काफी तारीफ हुई, प्रशंसा हुई, सराहा गया उस पुस्तक को। और अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे बीच नहीं है। तो उनकी इस परंपरा को, विरासत को मैं आगे रखते हुए हमने एकेडमिक्स बुक लिखने का निर्णय लिया है और इसी क्रम में हमने इतिहास पर अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें से इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पर किताबें लिखी, सिविल सर्विसेज के बच्चों के लिए, जो विश्वविद्यालय बच्चे हैं जो नेट जीआरएफ की तैयारी करते हैं उनके लिए हमने किताबें लिखी। तो उन पर किताब और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पर लिखे, क्योंकि अभी उसको विस्तार से करना अप्रासंगिक होगा, मूल मुद्दे से भटकाव होगा, इसलिए हम अभी इसी पर पुस्तक रखते हुए रिसेंटली अभी जो किताब हमारी प्रकाशित हुई है विश्व इतिहास की, स्पेशली हिंदी में प्रकाशित हुई है और मैं हिंदी माध्यम के बच्चों से अनुरोध करता हूं कि वे इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। इसके पहले भी माइग्रा हिल पब्लिकेशन से मेरी विश्व इतिहास की किताब आ चुकी है और वो किताब इतनी ज्यादा डिमांडिंग रही कि प्रकाशक कभी भी समय पर उसकी उपलब्धता नहीं करा पाए। तो वो जो माइग्रा हिल पब्लिकेशन, जो पहले टीएमएच के नाम से जाना जाता था, उस एमएच पब्लिकेशन में जो विश्व इतिहास की किताब हमारी आ रही थी, उसी को एक नए डायमेंशन से, एक नए अप्रोच से और एक नए प्रकार से हमने डिजाइन करके इस पुस्तक को प्रस्तुत किया, जो एस चांदन कंपनी ने प्रकाशित किया। तो हमें लगता है कि आज की तारीख में जितनी सामग्रियां वर्ल्ड वाइड उपलब्ध है, सिविल सेवा के संबंध में जो लेटेस्ट अप्रोच है, जो उनको चाहिए, जो हमने स्वयं पढ़ाते हुए अनुभव किया, इन सब को इस पुस्तक के साथ इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया। तो ये पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत है। Absolutely, sir. So, thank you so much for sharing your insight, journey, and the incredible work that you put into this book. I hope that everyone who is listening or watching this feels equally inspired and curious as I do. Wishing this book all the success which it absolutely deserves. Thank you. Thanks. Thanks, Angel.